السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ بادامی باغ فروٹ اور سبزی منڈی کو لکھو ڈیر منتقل کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے کا PC1 تیار۔ DCO سے منظوری کے بعد پنجاب حکومت کو بھجوا دیا گیا، جبکہ منڈی کی منتقلی اور سرکاری ریٹ لسٹ درست نہ بنانے کے خلاف آڑھتیوں اور پھڑیوں کا احتجاج۔ فراڈ کیس میں درخواست گزار خاتون کو ہراساں کرنے پر سیشن عدالت کا FIA کے ڈائریکٹر قدرت اللہ بھنڈر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر بشارت احمد کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں میٹرو بس پروجیکٹ کا دائرہ کار شہر کے دیگر حصوں تک بڑھانے پر غور۔ شہباز شریف کو میٹرو بس پروجیکٹ کے توسیعی منصوبے کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ کسی بھی رہائشی اسکیم کی تشہیر سے قبل NOC کا حصول لازمی قرار۔ LDA کے مطابق لاہور ڈویژن کی حدود میں کسی بھی دوسرے محکمے کی منظوری کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ پنجاب حکومت کا امریکی کونسل خانے کی تعمیر کے لیے بیدیاں روڈ پر 40 ایکڑ زمین دینے سے انکار۔ امریکی کونسلیٹ کا موجودہ دفتر کے احاطے میں نئی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ شملہ پہاڑی کے قریب واقع آفس کو سیکیورٹی خدشات کے باعث بیدیاں روڈ پر منتقل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو خط لکھا تھا۔ صلاح کے لیے آنے والے قتل کے ملزم فیاض کو مخالفین نے کاہنا پولیس اسٹیشن کے اندر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع سے ایک ملزم اکرام جھیڈو کو گرفتار کر دیا۔ FIA نے NICL کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے پر اہم ملزم محسن وڑائش کے ضامن اکرم وڑائش کو گرفتار کر دیا۔ نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر پنجاب یونیورسٹی کے 6 طلباء خارج۔ حافظ واجد، ناصر علی، عدنان اختر، اسامہ احمد خان، تحسین یوسف اور سہیل اعظم کے نام شامل۔ چلڈرن ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج۔ سروس اسٹرکچر سمیت دیگر مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ مریض بچوں کے والدین پریشان۔ بھارت سے جگر کا ٹرانسپلانٹ کرانے والا 9 سالہ عمران شیخ زید ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ عمران کو کومے کی حالت میں واہگہ بارڈر کے راستے دہلی سے لاہور بھیج دیا گیا تھا۔ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ مختلف علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے کی مسلسل لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ ادھر گلبرگ 2 کی مختلف کالونیوں میں 2 ماہ سے گیس کی عدم دستیابی کے خلاف خواتین کا گرو مانگٹ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ امریکن کمپنی پرنسٹن SB1 گروپ کے 5 رکنی وفد کی MD لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے ملاقات۔ کوڑے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر بریفنگ دی۔ اساتذہ کی بھرتی کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ۔ ناقص انتظامات کے باعث امیدوار فارم جمع کرانے کے لیے خوار ہو گئے۔ موسمی خرابی اور جہازوں کی کمی کے باعث 20 سے زائد پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ ادھر PIA کی مدینہ جانے والی پرواز پر انتظامیہ نے اضافی ٹکٹ جاری کر دیے۔ 40 زائرین ارض مقدسہ جاتے جاتے رہ گئے۔ بین الاقوامی فلاحی تنظیم واک فری کا 8 رکنی وفد خصوصی طیارے پر برونائی سے لاہور پہنچ گیا۔ ادھر سینئر اداکارہ خورشید بیگم، اداکار سلمان شاہد، جواد بشیر اور میکان ذوالفقار کی کراچی سے لاہور آمد۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی نے شہر میں چلنے والے تمام چنگچی اور موٹر سائیکل رکشوں کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے لیے اندراجی کیمپ قائم کر دیے۔ تشدد سے جاں بحق گھریلو ملازمہ فضا کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری۔ چہرے، سر اور جسم پر سوجن تھی، زخم نیلے پڑ چکے تھے۔ فضا کی نعش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے سپرد۔ بیٹی کو تشدد کر کے قتل کیا گیا، غریب ہیں، انصاف فراہم کیا جائے۔ بچی کے والدین کی میو ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ گھریلو ملازمین پر تشدد کے خلاف مسلم لیگ کاف نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرا دی۔ ادھر چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو صبا صادق کا کہنا ہے کہ تشدد کے واقعات روکنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، جبکہ SP عمر ریاض سیما کا کہنا ہے کہ ملزم پروفیسر سلمان کے تمام گھر والے شامل تفتیش ہیں۔ فیڈرل کورٹس میں ججز کی کمی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ایک جج کو 3 عدالتوں کا کام سونپنے کی کوشش۔
स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स कोर्ट शफकत अली ने FIA कोर्ट में इजाफी जिम्मेदारी निभाने से माजरत कर दी। हाई कोर्ट ने फेडरल कोर्ट बिल्डिंग की खस्ता हाली के हवाले से सिटी 42 की रिपोर्ट पर नोटिस ले लिया। इमारत की तज़मीन और आराइश का काम फौरी शुरू करने के अहकाम जारी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और यूथ विंग के वफ्द की मुलाकात। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का मेयो अस्पताल का दौरा। शोबा अमराज अतफाल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। यूईटी में टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। एकेडमिक पैनल ने सदर समेत एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की सीटें जीत ली। डॉक्टर मोहम्मद शुएब सदर के ओहदे पर कामयाब। पीसी होटल में हायर कंपनी का सालाना ब्रांड सेमिनार। हायर कंपनी के डायरेक्टर शाह फैसल आफरीदी की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब की अहलिया बेगम परवीन सरवर का गवर्नमेंट स्कूल बराए नाबीना तालिबात और शादाब ट्रेनिंग स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन साइबर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा। नाबीना तालिबात और जहनी पसमानदा बच्चों में तोहफे तकसीम किए। अलहमरान गैलरी में नौजवान मुसाफिरा सुरैया सिकंदर के फनपारों की नुमाइश। NCA की साबिक प्रिंसिपल सलीमा हाशमी ने इफ्तिताह किया। लक्स ने लक्स स्टार कैलेंडर 2014 लॉन्च कर दिया। तेरे मेरे गीता प्यार दा पुल बनना। तेरे मेरे गीता प्यार दा पुल बनना। इस कंडियाली तार ने एक दिन फुल बनना। भारतीय गुलकार हंसराज हंस लाहौर में हंसी खुशी 2 रोजा कयाम के बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत चले गए। हंसराज का कहना था कि लाहौरियों से मिलने वाली मोहब्बत को वो कभी भी नहीं भुलाएंगे। और चिड़ियाघर की आबादी में इजाफा। अमरीकी नस्ल की तोमा के हाथ 2 बच्चों की पैदाइश। 40 रोज बाद शायकीन के लिए पेश किया जाएगा। बादामी बाग सब्जी मंडी की लखों ढेर मुंतकिली के लिए 50 करोड़ रुपए का PC1 DCO की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया गया है। बादामी बाग सब्जी मंडी को मुंतकिल करने का फैसला किया गया था। इसके लिए इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस मकसद के लिए PC1 तैयार कर लिया गया है। PC1 में 35 करोड़ रुपए जमीन के हुसूल और 15 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी के लिए रखे गए हैं। जमीन के हुसूल के लिए सेक्शन 4 पहले ही किया जा चुका है और अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू को हिदायत की गई है कि जमीन के हुसूल के लिए इंतजामात को मुकम्मल कर लिया जाए। बादामी बाग फ्रूट मंडी के आड़तियों और फड़ियों ने मंडी को मुंतकिल और सरकारी रेट लिस्ट दुरुस्त न बनाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालिबात न माने गए तो बादामी बाग मेन रोड ब्लॉक कर देंगे। बादामी बाग फ्रूट मंडी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में फ्रूट मंडी के सदर चौधरी जहीर, बाबू रशीद, चौधरी शहबाज, राना अजहर, राना जहीर, माजिद बेग, अरशद चौधरी, जाहिद नवाज, मलिक हमीद, सुहेल अनवर, माजिद हुसैन, इमाम दीन और हाजी अल्लाह नूर समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए चौधरी जहीर ने कहा कि मंडी की मुंतकिली का फैसला उनकी मुशावरत से किया जाए। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब हुकूमत आवाम को मयारी, बाकिफायत और तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए जामे प्रोग्राम पर अमल पैरा है। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा अहमद हसन, पंजाब मेट्रो बस अथॉरिटी के सरबराह सिप्टेन फजल हलीम, DG LDA अहद चीमा, MD नेस्बाक और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आला ने कहा कि लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रो बस प्रोजेक्ट इंतहाई कामयाबी से आवाम को जदीद सफरी सहूलतें फराहम कर रहा है। LDA ने किसी भी रिहायशी स्कीम की तशहीर से कबल NOC का हुसूल लाजमी करार दे दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को मुतला किया है कि लाहौर डिवीजन में शामिल इजला, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर की हुदूद में प्राइवेट रिहायशी स्कीम लैंड सब डिवीजन की मंजूरी देने का इख्तियार सिर्फ LDA के पास है।
लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सिवा कोई दूसरा महकमा या टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई बल्दियाती इदारा या हुकूमत का कोई और महकमा 19 सितंबर 2013 के बाद लाहौर डिवीजन की हदूद में प्राइवेट रिहायशी स्कीम लैंड सब डिवीजन की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं रखता। LDA ने वाज़ेह किया है कि मुजव्वज़ा तारीख के बाद लाहौर डिवीजन की हदूद में किसी भी दूसरे महकमे की तरफ से दी जाने वाली मंजूरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पंजाब हुकूमत ने अमरीकी काउंसिल खाने की तामीर के लिए बेदिया रोड पर 40 एकड़ जमीन देने से इनकार कर दिया है। अमरीकी कौंसलेट ने शिमला पहाड़ी के करीब वाक़िया ऑफिस को सिक्योरिटी खदशात के बायस बेदिया रोड पर मुंतकिल करने के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखा था। खत में कौंसलेट ऑफिस के लिए बेदिया रोड पर एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल के करीब 40 एकड़ अराजी फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी, मगर हुकूमत पंजाब ने अराजी देने से इनकार कर दिया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से इनकार के बाद शिमला पहाड़ी के करीब वाक़िया मौजूदा दफ्तर में नई बिल्डिंग तामीर करने का फैसला किया गया है, जबकि इस हवाले से अमरीकी कौंसलेट ने दफ्तर से मुल्हिका जमीन खरीदने के लिए मालकान से बातचीत भी शुरू कर दी है ताकि कौंसलेट की इमारत को वसी किया जा सके। ज़राए के मुताबिक कौंसलेट के सिक्योरिटी इंतजामात को भी बेहतर बनाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि अमरीकी कौंसलेट को आवाम के लिए खोला जा सके। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने 8 अगस्त को नामूस रिसालत के हक में होने वाले मुजाहरे और दहशतगर्दों की जानिब से मिलने वाली धमकियों के बाद कौंसलेट को बंद कर दिया था। एडिशनल सेशन जज सफदर अली भट्टी ने इशराकी सलमा सईद की तफ्तीश सही न करने पर और दरख्वास्त गुजार को हिरासा करने पर 2 डायरेक्टर्स कुदरतुल्लाह वसीम भंडर और एडिशनल डायरेक्टर बिशारत अहमद के खिलाफ कानून के मुताबिक सिविल लाइन पुलिस को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। एडिशनल सेशन जज की अदालत में सलमा सईद ने अपने वकील आफ्ताब बाजवा एडवोकेट को दरख्वास्त दी कि नईम नामी शख्स ने उसकी बहन और भाई को लंदन भिजवाने के लिए उससे 30 लाख रुपए हथिया लिए, लेकिन बाद में उनको ना भिजवाया और रकम खुद बुर्द कर ली। FIA बैंकिंग सर्कल ने NICL केस में 168 करोड़ के चेक बाउंस केसेस में हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने पर साबिक वफाकी वजीर हबीबुल्लाह वड़ाइश के बेटे मोहसिन वड़ाइश के सामिन अकरम वड़ाइश को गिरफ्तार कर लिया। NICL के एक मुलजिम मोहसिन वड़ाइश की 168 करोड़ रुपए की जमानत अकरम वड़ाइश ने दे रखी थी। उसने 42 करोड़ रुपए के 4 चेक्स दिए जो बाउंस हो गए थे, जिस पर अकरम वड़ाइश के खिलाफ मुकदमात दर्ज थे। हाई कोर्ट से इन केसेस में जमानत खारिज होने पर आज FIA बैंकिंग सर्कल के इंस्पेक्टर हाजी इरशाद और उनकी टीम ने अकरम वड़ाइश को हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने काला खताई रोड पर वाक़े पैरामाउंट इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्री के मालिक चौधरी शफीक को सेल्स टैक्स फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। रीजनल टैक्स ऑफिस हुक्काम के मुताबिक पैरामाउंट इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्री के मालिक चौधरी शफीक ने टैक्स गोशवारों में अपनी इंडस्ट्री की पैदावार सिफर जाहिर करके 8 करोड़ 10 लाख रुपए का सेल्स टैक्स फ्रॉड किया है। RTO 1 हुक्काम के मुताबिक चौधरी शफीक ने जुलाई 2013 से ताहाल सेल्स टैक्स की अदायगी नहीं की है। टैक्स हुक्काम ने पैरामाउंट इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्री के बिजली के बिल से सेल्स टैक्स फ्रॉड का सुराग लगाया है। शहर में दूसरे रोज भी गैर एलानिया लोड शेयरिंग का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की मुसलसल लोड शेयरिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने शहर में 8 घंटे लोड शेयरिंग का शेड्यूल जारी कर रखा है, ताहम बिजली के कोटे में कमी की वजह से दूसरे रोज भी गैर एलानिया लोड शेयरिंग का सिलसिला जारी रहा। ज़राए ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की ग्रिड स्टेशन से बराह रास्त लोड शेयरिंग की गई, जिसकी वजह से सारिफीन को मुश्किलात दरपेश रहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली चोरी और ओवर बिलिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए करार दिया है कि बिजली पहले ही महंगी है, इस पर ओवर बिलिंग और लोड शेयरिंग जुल्म के मुतनातिफ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदियाल की अदालत में जॉइंट सेक्रेटरी पानी और बिजली जरगाम खान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बिजली चोरी के तदारुक के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि KESC से 650 मेगावाट बिजली वापस लेने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। अदालत ने करार दिया कि तकसीम कार कंपनियां पैसे लेती हैं, मगर फिर भी लोड शेयरिंग हो रही है। गुलबर्ग 2 की मुख्तलिफ कॉलोनियां 2 माह से गैस से महरूम हैं। महकमे के आला अफसरान सारिफीन की शिकायत तो सुनने को तैयार नहीं, लेकिन हजारों रुपए के बिल हर माह भेज दिए जाते हैं। इलाके की खवातीन ने गुरु मांगट रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए GM लाहौर रीजन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गुलबर्ग 2 की रिहायशी खवातीन ने बताया कि जनाह पार्क, रहमान पार्क, शेरा कोठी और M ब्लॉक में गुज़श्ता 2 माह से गैस नहीं आ रही, जबकि सुई गैस हुकाम की जानिब से हर माह हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनरल मैनेजर लाहौर रीजन महमूद जिया अहमद को मसले के हल के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन मसला जू का तू है। रॉयल कॉन्टिनेंटल होटल में हायर कंपनी का सालाना ब्रांड सेमिनार हुआ, जिसमें कंपनी डायरेक्टर शाह फैसल आफरीदी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की।
सेमिनार में डायरेक्टर हायर शाह फैसल आफरीदी, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मुनव्वर दुरानी, हेड ऑफ मार्केटिंग मियां वहीद, मार्केटिंग मैनेजर हुमायूं रशीद ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद डीलर्स में नया ब्रांड मुतारिफ कराना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हायर कंपनी के डायरेक्टर शाह फैसल आफरीदी का कहना था कि हायर पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है जिसने इस साल में 20 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि कायद-ए-आज़म की क़यादत में नौजवानों ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। आज भी नौजवानों को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग के परचम तले मुत्तहिद हो जाएं। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर काफ लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद के हमरा, यूथ विंग के सदर बिलाल मुस्तफा शिराजी और नौमंतखब जनरल सेक्रेटरी मलिक शकील सिकंदर की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि यूथ विंग के नौजवान मुस्लिम लीग का हरावल दस्ता है और पार्टी में उनकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की है। तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा है कि मुल्क के असासों का सौदा करने के लिए हुकूमत ने अपने अफराद को बोर्ड का मेंबर बना दिया। इंतखाबात के बाद लगता है मुस्लिम लीग नून को मुल्क बेचने का मैंडेट मिल गया है। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में कनाडा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्की असासों को बेचने के लिए मुंशियों को रख लिया है। अगर सियासी जमातों में दमखम नहीं तो अवामी इनकलाब के जरिए कौम के माल की हिफाजत की जाएगी। उन्होंने निजकारी के लिए 15 नुकाती फार्मूला पेश करते हुए कहा कि बोर्ड के मेंबर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ट्रांसपेरेंसी की माहिर फर्म का हायर हो, बैनुल-अक़वामी माहिरीन की निगरानी में निजकारी की जाए। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में तैनात सेक्रेटरी समेत ग्रेड 20 के 10 अफसरान को नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के लिए नामजद किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर एजाज मुनीर, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक डॉक्टर आमिर अहमद, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड नसीम नवाज, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर साजिद यूसुफानी, ग्रेड 20 के अफसरान हसन नासिर जामी, डॉक्टर सैयद परवेज अब्बास, डॉक्टर परवेज अहमद खान और जफर नसरुल्लाह को इस कोर्स के लिए नामजद किया गया है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर में चलने वाले तमाम चिंची और मोटरसाइकिल रिक्शों के आदाद शुमार इकट्ठे करने के लिए इंदराजी कैंप कायम कर दिए हैं। वाइस चेयरमैन LTC महर इश्तियाक अहमद का कहना है कि चिंची रिक्शों के मुकम्मल आदाद शुमार इकट्ठे करके ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए लाहे अमल तैयार किया जाएगा। चिंची रिक्शों के कवायद जमा करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 11 इंदराजी कैंप लगाए गए हैं। रुकन कौमी असम्बली और वाइस चेयरमैन LTC महर इश्तियाक अहमद ने सब्जाजार के इलाके लियाकत चौक में LTC इंदराजी कैंप का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में CEO LTC ख्वाजा हैदर लतीफ, चीफ ऑपरेटिंग अफसर उमर पीरजादा, मैनेजर एनफोर्समेंट चौधरी शफीक अहमद, मैनेजर एडमिन आबिद हुसैन, नासिर हुसैन और फैसल निसार समेत दीगर LTC अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी ने कहा है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के ताउन से चिंची रिक्शों का शहर के 11 मकामात पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। CTO सुहेल चौधरी के मुताबिक सब्जी मंडी कोट लखपत, इतवार बाजार शालीमार चौक, क्रिकेट स्टेडियम लियाकत चौक, मुनावा मंडी जल्लो मोड़, गुड्डी ग्राउंड गेट नंबर 2, जोधो रेलवे क्रॉसिंग खाड़ा चौक पर कैंप लगाए गए हैं। रेलवे चौक स्टेशन ट्रैक, RI बाजार बस स्टैंड, सर्विस रोड भाटी चौक, बिलमुकाबिल मदरसा हनीफिया नज़द AC कोस्टर स्टैंड, इतवार बाजार वहदत रोड, कश्मीर ब्लॉक GT रोड नज़द रेलवे स्टेशन शादरा मोड़, शेयर पंप पर भी कायम किए गए हैं। असातिज़ा की भर्ती के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख, इंतजामात मुनासिब न होने के बायस उम्मीदवार फॉर्म जमा कराने के लिए ख्वार हो गए। मजीद अहवाल जुनीद रियाज की इस रिपोर्ट में। असातिज़ा की भर्ती के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। आखिरी रोज सुबह सवेरे ही हाल रोड पर ADO एजुकेशन के ऑफिस में उम्मीदवारों का रश लग गया। महकमा तालीम की जानिब से मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से उम्मीदवारों को दरख्वास्तें जमा कराने के लिए घंटों खुआर होना पड़ा। उम्मीदवारों का कहना था कि महकमा तालीम ने दरख्वास्तें जमा कराने के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किए। उन्होंने कोई लिख के पंफलेट ही नहीं लगाया कि ये यानी कि कौन से स्केल और कौन सा सब्जेक्ट उसने कहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवानी है। सुबह से खप रहे हैं, वो कहते हैं नहीं लाइन में लग जाएं, किसी को कोई पता नहीं है ना, यहाँ पे कोई इंतजामात है पानी के लिए, खाने पीने के लिए। स्टाफ जो है बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहा। अगर हम मेल्स के बारे में बात करते हैं जी, मेल्स फॉर्म कहाँ जमा होने हैं, वो कहते हैं जी फीमेल स्टाफ पे चले जाएं आप, और अगर फीमेल्स के पास आता है तो वो मेल्स के पास भेज देते हैं। ADO एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए आज रात गए तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। 18 दिन का टाइम अप्लाई करने के लिए सफिशिएंट टाइम है, तो आज लास्ट डेट है। आज हम ये करेंगे कि टाइमिंग अगरचे ऑफिशियल टाइमिंग 3 बजे तक है, लेकिन हम लोग जब तक आखिरी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं करवा लेता हम लोग बैठें और तमाम की तमाम एप्लीकेशन तमाम कैंडिडेट्स की जितने भी लोग हैं वो जमा करेंगे।
नामुनासिब इंतजामात और कागजात पूरे न होने की बाइस बेशतर उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा ना करा सके। उम्मीदवारों ने वजीर तालीम से मुतालबा किया है कि दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में इजाफा किया जाए। कैमरामैन अदनान अली के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी पर एक माह में पोलियो के खिलाफ तीसरी मुहिम शुरू। पार्लिमानी सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर ने डीजी हेल्थ के हमरा में अस्पताल में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। पोलियो के खिलाफ 3 रोजा कौमी मुहिम 20 से 22 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान शहर में 5 बरस उम्र तक के 15 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के खिलाफ मुहिम के लिए 3,338 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो के वायरस की सीवरेज में मौजूदगी के बायस गुज़श्ता एक माह के दौरान लाहौर में तीसरी मुहिम चलाई जा रही है। डिफेंस के इलाके ई ब्लॉक में मालिक के बदतरीन तशद्दुद का शिकार 14 साला मुलाजमा फिजा बतूल अस्पताल में दम तोड़ गई। फिजा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वालिदैन के हवाले कर दी गई है। तफसीलात के लिए देखते हैं असद साही की ये रिपोर्ट। डिफेंस ई ब्लॉक के रहायशी प्रोफेसर सलमान रफीक ने अपनी घरेलू मुलाजमा 14 साला फिजा बतूल को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। फिजा को तशवीशनाक हालत में सरसद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। फिजा बतूल की लाश उसके वालिदैन के हवाले कर दी गई है। न्यू अस्पताल डेड हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए मकतूला फिजा की वालदा जोरा बीबी ने बताया कि 4 साल कबल उसने फिजा को प्रोफेसर सलमान रफीक के घर मुलाजमा रखवाया था। गम से निराल माँ रो रो का इंसाफ की दहाई देती रही। मकतूला के वालिद शम्स ने बताया कि 6 माह कबल प्रोफेसर सलमान रफीक एक दफा फिजा बतूल को उनके गांव लाया था और कुछ अर्सा कबल वो मिलने आए तो प्रोफेसर सलमान ने जबरदस्ती सादा कागज पर दस्तखत भी करवाए। सारे लोगों के घर बच्चियां ने, सारे लोगों घर बच्चियां काम करदियां ने, कोई इस तरह नहीं करता जिस तरह इन्हें मेरे नाल कीती है। मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को हक मिलना चाहिए। मेरी बच्ची वापस तो नहीं आ सकती, मेरे को हक चाहिए। एसपी कैंट उमर चीमा भी म्यू अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि घर के दीगर मेंबरान को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की सरबराह एमपीए सबा सादिक भी डेड हाउस म्यू अस्पताल आई, जहां उन्होंने फिजा के वालिदैन को यकीन दिलाया कि मुलजिम को करार वाकया सजा दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे बच्चियों को घरों में मुलाजिम रखने के हवाले से कवानीन में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फिजा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने डीएनए के लिए लिबर्टी को भिजवा दिया है। ना सिर्फ ये कि इन्होंने बच्ची पे तशद्दुद का निशाना बनाया है, उसको बल्कि हब्से बेजा में रखा था, उसको मिलने नहीं देते थे। अगर कोई मुलाजिम है तो उनके भी राइट्स हैं, उनके हकूक हैं कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उनको लुक आफ्टर किया जाए, उनकी तनख्वाह मिले। चीफ मिनिस्टर साहब ने इन इश्यूज के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट कंसर्न शो किया है और इसके ऊपर जो सजा है इसके ऊपर अमल दरामद सख्त से सख्त करवाना, ये इंशाअल्लाह ताला ये करवाया जाएगा ताकि ये जो वाकया हुआ इस किस्म के वाकयात की मजीद रोकथाम हो सके। मालिक के तशद्दुद से घरेलू मुलाजिम की हलाकत का ये पहला वाकया नहीं। हुकूमत को घरेलू मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खुसूसी कवानीन बनाने होंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकथाम हो सके। कैमरामैन अली नुमान के साथ असद साई, सिटी 42। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफे के पेश नजर मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब हुकूमत से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मौसर कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली में रावलपिंडी और बन्नू में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवाई है। प्रोफेसर सलमान के तशद्दुद का शिकार होने के बाद हलाक होने वाली फिजा बतूल के वाक़े पर मुस्लिम लीग काफ के रुकन असम्बली आमिर सुल्तान चीमा और बासमा रियाज चौधरी की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा करवाई गई है, जिसमें काफ लीग ने मुतालबा किया है कि घरेलू मुलाजमीन पर होने वाले तशद्दुद के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ताहम वक्त की अहम जरूरत है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और पुरतशद्दुद वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी की जाए। अमेरिकन कंपनी प्रिंसटन SW1 ग्रुप के 5 रुकनी वफ़द ने MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से मुलाकात की। वफ़द ने हुक्काम को कूड़े से बिजली पैदा करने के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस एजर्टन रोड पर अमेरिकन कंपनी प्रिंसटन SW1 ग्रुप के 5 रुकनी वफ़द ने MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वसीम अजमल चौधरी से मुलाकात की। अमरीकी वफ़द में कंपनी CEO पीटर टाइन, डायरेक्टर नईम जमील, शान अहमद, हुमायूं अता, उस्मान नबी शरीक हुए, जबकि GM ऑपरेशन LWMC खालिद मजीद, GM प्रोक्योरमेंट कर्नल रिटायर्ड ताहिर मकबूल, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस वासिफ अजहर, सीनियर मैनेजर प्लानिंग नुसरत गुल भी मौजूद थे। लाहौरी बच्चों के लिए खुशखबरी, चिड़ियाघर में अमरीकन नस्ल के पोमा शेर के 2 बच्चों की पैदाइश, बच्चों को 40 रोज बाद साइकिन के लिए पेश किया जाएगा। फिजा इमरान की ये रिपोर्ट देखता है।
पोमा अमेरिकन नस्ल शेर है जिसे माउंटेन लायन भी कहा जाता है। पोमा बच्चों की पैदाइश से कबल चिड़ियाघर में इस नस्ल के सिर्फ 4 जानवर थे। अब 2 बच्चों की पैदाइश के बाद इनकी तादाद 6 हो गई है। चिड़ियाघर के डायरेक्टर नईम भट्टी के मुताबिक पैदा होने वाले पोमा बच्चों को नहायत निगहदाश्त में रखा गया है और पोमा माँ को दूध के साथ स्पेशल फूड सप्लीमेंट दिया जा रहा है और इसको खाने में चिकन और बीफ दिया जा रहा है। नईम भट्टी का कहना है कि पोमा नस्ल के शेर किसी खतरे की भनक पड़ने पर अपने बच्चों को खा जाते हैं, इसलिए फिलहाल बच्चों और माँ को अलहदा निगहदाश्त में रखा गया है, जिन्हें 40 दिन बाद शायकीन के लिए पेश किया जाएगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ फिजा इमरान, सिटी 42। बल्कि भारत से जिगर ट्रांसप्लांट कराने वाले नन्हे इमरान की मैयत शेख ज़ैद अस्पताल से घर के लिए रवाना कर दी गई है। रिफत अब्बास इस वक्त शेख ज़ैद अस्पताल में मौजूद हैं। मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। रिफत अब्बास ये बताएगा कि नन्हे इमरान की मैयत को शेख ज़ैद अस्पताल से घर की जानिब रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर उनके वरसा का क्या कहना था? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी एम्बुलेंस जो है बिल्कुल तैयार खड़ी है, जो कि नन्हे इमरान की जो मैयत को ले जाने के लिए लंडी कोतल जो उनका घर है वहाँ पर ले जाने के लिए भी तैयार खड़ी है। यहाँ पर जो मीडिया से बात की है इमरान के वालिद ने, जिनका नाम फजल खान है, उनका ये कहना था कि वो गरीब आदमी हैं और किसी जो है यहाँ पर जो है ज़कात के पैसों से इकट्ठे करके वो इंडिया गए थे अपने बेटे का इलाज कराने, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं बचा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत ने भी साथ नहीं दिया और डॉक्टर ने भी यहाँ पे जो शेख ज़ैद के उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि 4 घंटे तक यहाँ पर जो है इमरान को जो है कोई इमदाद नहीं दी गई, तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसकी जो है वो मौत वाक़ई हुई है। यहाँ पर हमारे साथ मंसूरा के एक डॉक्टर खान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि रज़ाकाराना तौर पर इमरान के वालिद के साथ उन्होंने उनका साथ दिया रज़ाकाराना तौर पर। हम इनसे पूछते हैं कि आज जब ये डेड बॉडी जो है वाघा बॉर्डर से आई है तो क्या डॉक्टर्स के यहाँ के डॉक्टर्स का क्या कहना था, और एम्बुलेंस की जो रेस्क्यू 1122 ने जो उनको फैसिलिटी नहीं दी वो क्यों नहीं दी, ये हमसे पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि जब डेड बॉडी वाघा बॉर्डर आई है तो आपने रेस्क्यू 1122 को कॉल की, तो उनका क्या कहना था? रेस्क्यू 112 को मैंने कॉल परसों की थी, सैटरडे को, क्योंकि एक दिन पहले मैं अरेंजमेंट करना चाहता था ताकि एन मौके पे सम टाइम चीज़ें नहीं अवेलेबल होती, तो मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा सर हम सिर्फ लाहौर के अंदर प्रोवाइडेबल हैं, वाघा बॉर्डर लाहौर के अंदर नहीं आता, इस वजह से हम ये सर्विस बाहर के लिए नहीं दे सकते और इसकी वजह से मुझे प्राइवेट हायरी से करना पड़ा। ये जो वेंटिलेटर वाली और की एम्बुलेंस का अरेंज नहीं हुआ? नहीं, वेंटिलेटर वाला हुआ लेकिन एज अ प्राइवेट हुआ। कोई भी एदी वाले के पास, दूसरों के पास, सबसे मैंने पता किया था इनके पास वेंटिलेटर वाली नहीं थी। ये म्यू हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट कंपनी है जो एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है, उन्होंने मुझे वेंटिलेटर। बहुत शुक्रिया रिफत अब्बास हमें अपडेट करने के लिए। सुहेल चौधरी ने डीजी एक्साइज ऑफिस में गाड़ियों को कंप्यूटराइज रिकॉर्ड का जायजा लिया। उन्होंने गाड़ियों के नंबर SMS के जरिए चेक करने और इनके कंप्यूटराइज रिकॉर्ड को देखने के लिए 3 वार्डन्स को तरबियत देने की दरख्वास्त की। CTO सुहेल चौधरी डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के दफ्तर गए, जहां उन्होंने डीजी नसीम सादिक से मुलाकात की। इस मौके पर CTO ने एक्साइज की तरफ से गाड़ियों के तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने में दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने डीजी से दरख्वास्त की कि 3 वार्डन्स को भी तरबियत दी जाए ताकि SMS सर्विस से ट्रैफिक पुलिस भी फायदा उठा सके और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी के तमाम कवायद जानकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। फेडरल कोर्ट्स में जजेस की कमी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एक जज को 3 अदालतों का काम सौंपने की कोशिश हो रही है। स्पेशल जज एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट शफकत अली ने बैंक क्राइम्स कोर्ट के इजाफी चार्ज के साथ स्पेशल जज सेंट्रल FIA कोर्ट की जिम्मेदारियां निभाने से माजरत कर ली। फेडरल कोर्ट्स में इस वक्त 5 अदालतों में जजेस न होने की वजह से हू का आलम है। स्पेशल जज सेंट्रल FIA कोर्ट, कस्टम एंड टैक्सेशन, बैंक क्राइम्स कोर्ट और 2 बैंक रिकवरी कोर्ट्स में जजेस नहीं है, जिससे यहां पर अदालती कार्रवाई पूरी तरह मुतासिर हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़लज़ले के नाम पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 1 करोड़ की कटौती के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने बलूचिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के नाम पर सरकारी अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह की कटौती की, जिसका हुकूमत को कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि ज़लज़ले के नाम पर तनख्वाह की कटौती के इक़दाम को गैर आईनी करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब की एहलिया बेगम परवीन सरवर ने खैबर ब्लॉक इकबाल टाउन में गवर्नमेंट स्कूल बराए नाबीना तालिबात और शादाब ट्रेनिंग स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का दौरा किया और बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। फिजा इमरान की ये रिपोर्ट देखता है।
गवर्नमेंट स्कूल बराए नबीना तालबा और शदाब ट्रेनिंग स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में मुनक्किद होने वाली तकरीबात में गवर्नर पंजाब की अहलिया बेगम परवीन सरवर ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर डीओ स्पेशल एजुकेशन शहजाद हरून भट्टा, स्कूल प्रिंसिपल गजाल आरोही, गुलकारा शादिया मंजूर समेत असातिज़ा, नबीना तालबात और ज़हनी पसमानदा तलबा व तालबात मौजूद थे। गवर्नमेंट स्कूल बराए नबीना तालबात में मुनक्किद होने वाली तकरीब में बच्चियों ने मिली नगमे पेश किए। पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी हो, अपनी जान से प्यारी। नबीना तालबात की जानिब से पेश किए जाने वाले सूफियाना कलाम को शुक्र ने खूब सराहा। दूसरी जानिब शदाब स्कूल की तलबा की जानिब से पेश किए जाने वाले टैबलोज पर हाज़रीन ने खूब दाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर बेगम परवीन सरवर की जानिब से तलबा में तहाफ़ तक़सीम किए गए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ फिज़ा इमरान, स्टूडियो 42। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालिबात के हक में चिल्ड्रन अस्पताल आउटडोर के सामने एहतजाज किया और रैली निकाली। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद न हो तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। YTA की कॉल पर चिल्ड्रन अस्पताल में मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया गया। नौजवान डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने आउटडोर के सामने जमा होकर सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद न होने पर जबरदस्त नारेबाजी की। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि 15 माह गुजर जाने के बावजूद ऐलान करदा सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल न होने से डॉक्टर बिरादरी शदीद तशवीश में मुब्तला है। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी बाऊ अख्तर अली का कहना है कि आसिफ कॉलोनी बागबानपुरा की सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। MPA बाऊ अख्तर अली ने बागीची सेठावाली बागबानपुरा में मीटिंग की और हल्के में जारी तरक्याती कामों की सूरत हाल के हवाले से जायजा लिया। रुकन सूबाई असम्बली ने कहा कि हल्का PP 144 में अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है, जबकि सुल्तान महमूद रोड की खस्ता हाल सड़क जो कि इलाके का देरीना मसला था उसे हल कर दिया जाएगा। लेस्को के साथ स्टाफ ऑफिसर्स को ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई। अफसरान ने तरक्की की खुशी में मिठाई तकसीम की। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजर ग्रिड सिस्टम ऑपरेशंस के स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद शफीक, स्टाफ ऑफिसर डायरेक्टर लीगल मोहम्मद नसीर, मैनेजर ऑपरेशंस के स्टाफ ऑफिसर चौधरी इश्तियाक हुसैन, डायरेक्टर एडमिन के स्टाफ ऑफिसर गुलाम रसूल, स्टाफ ऑफिसर टू डायरेक्टर ऑपरेशंस ताहिर मकसूद, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स के स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद जावेद और चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के स्टाफ ऑफिसर अब्दुल हमीद को ग्रेड 16 में तरक्की दे दी गई है। पेपर मार्केट में पुलिस अफसरान को तारीफी असनाद देने की तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाए लाहौर चैम्बर खामिद सईद भट्ट समेत कारोबारी बिरादरी ने शिरकत की। पेपर मार्केट में मुनक़िदा तकरीब में SP ट्रैफिक राना शजात अली, DSP ख्वाजा जाहिद अब्बास, इंस्पेक्टर मोहम्मद बशीर, बाऊ बशीर और चेयरमैन ज़कात कमेटी खलीफा अब्दुल मजीद समेत ताजरों की कसीर तादाद शरीक हुई। इजलास में शरीक स्टैंडिंग कमेटी बनाए पेपर बोर्ड चेयरमैन LCCI खामिद सईद भट्ट ने कहा कि पुलिस फोर्स साल हर साल ताजरों समेत अवाम की खिदमत के लिए मसरूफ अमल रहती है। राशिद महमूद लगड़ियाल की ज़ेर सदारत डिविजनल स्पोर्ट्स कमेटी का इजलास। कमिश्नर का कहना है कि नौजवान नस्ल को यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में खेलों की मदद से बेहतरीन तफरीह फराहम की जा रही है। टाउन हॉल में होने वाले डिविजनल स्पोर्ट्स कमेटी के इजलास में अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नजीर, मियां मोहसिन लतीफ, राना तनवीर, राना मोहम्मद अरशद, खुरम एजाज, जमील हसन खान, तजम्मुल दयाल, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मलिक वकार, DCO ननकाना साहब, डॉक्टर उस्मान, ADCG, असिस्टेंट कमिश्नर्स, TMOs और स्पोर्ट्स अफसरान ने शिरकत की। पंजाब यूथ फेस्टिवल मुकाबलों में तहसील कैंट के इनफरादी कुकिंग में अदीबा और फैमिली कुकिंग में अजरा ने कामयाबी हासिल की। ड्रेस डिजाइनिंग इवेंट शाजिया एजाज ने जीत लिया।
ینگ پائنرز ایسوسی ایشن صدر کینٹ میں منعقد ہونے والے کوکنگ اور ڈریس میکنگ مقابلوں کی مہمان خصوصی معروف سماجی کارکن نسیم بانو تھی۔ اس موقع پر مینیجر سند زار رخسانہ نفیس، DDO گلبرگ سوشل ویلفیئر فرت حسن، ینگ پائنرز کے ڈائریکٹر محمد سعید، فیاض احمد، نثار بھٹی، عارف صدیقی اور سہیل صدیقی بھی موجود تھے۔ انفرادی کوکنگ کے مقابلے میں ادیبہ نے پہلی، مسز تسلیم نے دوسری اور سدرا ابوبکر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ادھر پاکستان آرمی اور افغان کلب نے قومی پریمیئر فٹ بال لیگ کے میچز میں مد مقابل ٹیموں کو شکست دے دی۔ فیصل ٹاؤن فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں افغان کلب نے لائن پور کے خلاف 0 کے مقابلے میں 1 گول سے فتح حاصل کی۔ افغان کلب کی جانب سے میچ کا واحد گول عزیز اللہ نے کھیل کے 46ویں منٹ میں کیا اور اپنی ٹیم کو 1-0 کی برتری دلوائی، جو مقررہ وقت کے اختتام تک برقرار رہی۔ دوسرے میچ میں آرمی کی ٹیم نے KRL کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرایا۔ KRL کے کھلاڑی کی جانب سے ڈی میں خطرناک فاؤل کے بعد آرمی کو کھیل کے 36ویں منٹ میں پینلٹی کک ملی، جس کا محمد عارف نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ خراب موسم اور جہازوں کی کمی کے باعث پیر کے روز ایئرپورٹ پر 20 سے زائد پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی، جبکہ دن بھر اہم شخصیات کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نبیل رضا ملک کی یہ رپورٹ۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خراب موسم اور جہازوں کی کمی کی وجہ سے ایئر بلو، PIA اور شاہین ایئر لائن سمیت دیگر 20 سے زائد پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں۔ پروازوں کے وقت پر نہ پہنچنے سے مسافر خاصے پریشان دکھائی دیے۔ ادھر عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے زائرین اور ان کے اہل خانہ کا بھی دن بھر رش لگا رہا، جو ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے پر بلبلا اٹھے۔ ہمارے مقابلے میں انڈیا ہے، وہاں اتنی سہولت ہے کہ وہ یہاں لاکھوں میں ہوتا ہے، وہاں ہزاروں میں، اور پھر جب وہ عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب جاتا ہے تو 20,000 وہ نقد دیتے ہیں ان کو کہ آپ اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ کم سے کم کرایہ گھٹ ہونا چاہیے، ہر غریب نے شوق ہے بھی ہر کوئی اپڑے، تے جڑا ٹکٹ مہنگی ہوگی وہ غریب آدمی تو نہیں اپڑ سکتا۔ بین الاقوامی فلاحی تنظیم واک فری کا 8 رکنی وفد خصوصی طیارے کے ذریعے برونائی سے لاہور پہنچ گیا، جو وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقاتیں اور ان کا انٹرویو بھی کرے گا۔ We're an organization mobilizing people around the world to end the use of forced labor in supply chains, working with governments, working with corporations, and working with religious and community organizations to make that happen. PIA کی کراچی سے آنے والی پرواز PK 304 پر اداکار سلمان شاہد اپنی والدہ کے ہمراہ، جبکہ اداکار جواد بشیر سمیت ماڈل میکال ذوالفقار بھی لاہور پہنچ گئے۔ کیمرامین امتیاز شاہ کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ کمیٹی نے ہنگامہ آرائی میں ملوث 6 طلباء کے نام یونیورسٹی سے خارج کر دیے۔ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے ہنگامہ آرائی اور یونیورسٹی قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی کرنے پر مزید 6 طالب علموں کو خارج کر دیا۔ خارج ہونے والوں میں یونیورسٹی لا کالج کے طالب علم حافظ ماجد علی، ناصر علی، عدنان اختر، اسامہ احمد خان، تحسین یوسف اور ہیلی کالج آف کامرس کے سہیل اعظم شامل ہیں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ٹیچنگ اسٹاف ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، اکیڈیمک پینل نے صدر سمیت ایگزیکٹو ممبرز کی سیٹوں پر مد مقابل انوویٹو پینل کو شکست دے دی۔ ڈاکٹر محمد شعیب صدر منتخب ہو گئے۔ UT مین لائبریری میں ٹیچنگ اسٹاف ایسوسی ایشن کے ہونے والے انتخابات میں 489 اساتذہ نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ اکیڈیمک پینل سے ڈاکٹر محمد شعیب 189 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ نائب صدور کے عہدوں پر اکیڈیمک پینل کے ڈاکٹر عزیز اکبر اور انوویٹو پینل کے ڈاکٹر توصیف حیدر نے کامیابی حاصل کی۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی آپ جان سکیں گے۔ لیے آنے والے قتل کے ملزم کو مخالفین نے کاہنا پولیس اسٹیشن میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع سے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق جھڈو پن کے رہائشی فیاض عرف جج اور اکرام کی دیرینہ دشمنی تھی اور فیاض پر مخالفین کے امجد نامی شخص کو قتل کرنے کا الزام تھا، جس پر آج فیاض عرف جج اور مخالفین کو صلح کے لیے تھانے بلایا گیا تھا۔ صلح کے بعد جیسے ہی فیاض اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پولیس اسٹیشن کے انویسٹیگیشن سینٹر سے باہر نکلا تو مخالفین نے فیاض پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس سے فیاض موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ 7 سال قبل اجتماعی شادیوں میں دارالامان سے رخصت ہونے والی یتیم لڑکی کا شوہر شادی شدہ نکلا۔ برسوں تشدد برداشت کرنے کے بعد لڑکی سیشن عدالت پہنچ گئی۔ عدالت نے باغبان پورہ پولیس کو لڑکی کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ دیکھتے ہیں شاہین عتیق کی یہ رپورٹ۔
فیصل آباد کی شازیہ کو بچپن میں باپ کے فوت ہونے پر والدہ دارالامان چھوڑ گئی، جہاں وہ جوان ہوئی۔ 7 سال پہلے اجتماعی شادیوں میں اس کو رخصت کیا گیا۔ شازیہ کے مطابق جب وہ سسرال پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر محمد زمان پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس سے اس کے 2 بچے پیدا ہوئے، لیکن وہ اس کو غیر مردوں کے پاس جانے پر مجبور کرتا، انکار پر اس پر تشدد کیا جاتا۔ تشدد سے تنگ آ کر وہ گھر سے باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور داتا دربار آ گئی۔ مجھے مار کٹ کے کہتا سی دادا صاحب تو اتنے آئی، میں بھائی لے کے آئے اخبار والے، تو میں تو واپس آنی، میں اپنے میاں کو طلاق لینی، میں نہیں اندر رہنا چاہتی، مینوں ماردا کٹدا دھمکیاں دیندا رہندا۔ شازیہ کو داتا دربار سے ایک شخص عدالت لایا، جہاں صفدر سعید ایڈوکیٹ نے لڑکی کو ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود زرغام کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت کو وکیل نے بتایا کہ لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مقامی پولیس جو اس کو تنگ کر رہی ہے، پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ اپنے اسی خامد کے ساتھ جا کے زندگی بات کرو، کیونکہ اس کے جو اس کے دیور ہیں وہ مقامی پولیس میں ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود زرغام نے ایڈوکیٹ صفدر سعید کے دلائل اور شازیہ کے بیان کے بعد تھانہ باغبان پورہ پولیس کو حکم دیا کہ شازیہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ ہاؤلر اینڈ فلپس پاکستان کو پاکستان میں اپنا نیا آفیشیل ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیا ہے۔ آفیشیل ڈسٹریبیوٹر کے طور پر ہواوے اور مولر اینڈ فلپس کے مابین معاہدہ طے پا گیا ہے۔ رائل پام میں ہونے والی معاہدے کی تقریب میں ہواوے پاکستان کے ڈیپٹی سی ای او احمد بلال مسعود، فین ہانگ، مولر اینڈ فلپس کے سی ای او کامران نوشاد، عبدالحمید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہواوے پاکستان کے ڈیپٹی سی ای او احمد بلال مسعود اور مولر اینڈ فلپس کے سی ای او کامران نوشاد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ احمد بلال مسعود کا کہنا تھا کہ ہواوے پاکستان کی مارکیٹ میں اعلیٰ خدمات فراہم کرنے کے لیے مولر اینڈ فلپس کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ایوان صنعت و تجارت نسیم احمد سیفی کی زیر صدارت حلال فوڈز اور میٹ ایکسپورٹرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سعودی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئی پالیسی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شالیمار ہال میں منعقدہ اجلاس میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر محمد ہارون، سابق ایگزیکٹو کمیٹی ممبر آغا نعمت سمیت حلال میٹ ایکسپورٹرز شریک ہوئے۔ اجلاس میں شریک حلال میٹ کے کمرشل ایکسپورٹرز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے وضع کردہ نئی پالیسی کے مطابق صرف فیکٹری مالکان ہی میٹ برآمد کر سکتے ہیں۔ صرافہ ایسوسی ایشن مون مارکیٹ اقبال ٹاؤن کے 9 منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان نے عہدیداروں سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان نے چیئرمین جاوید اقبال، وائس چیئرمین طاہر حسین، صدر رانا نوید، جنرل سیکرٹری محمد علی اور فائنانس سیکرٹری میاں ابو بکر سمیت دیگر عہدیداران نے اپنے عہدوں کا انڈیا میں لاہور کے ڈائریکٹر فلم کی شوٹنگ کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے بھارت روانہ ہو گئے۔ اکرام اختر کا کہنا ہے کہ فلم کی شوٹنگ 3 ممالک میں ہوگی۔ کرکٹر محمد آصف فلم میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر فلم اکرام اختر واہگہ بارڈر کے راستے بھارت روانہ ہو گئے۔ واہگہ بارڈر پر گفتگو کرتے ہوئے اکرام اختر کا کہنا تھا کہ ان کی فلم کی شوٹنگ پاکستان، بھارت اور دبئی میں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ عثمان پیرزادہ فلم کے لیے بھرپور رہنمائی کر رہے ہیں۔ الحمرا آرٹ گیلری میں نوجوان مصورہ سریا سکندر کے فن پاروں کی نمائش کا آغاز ہو گیا۔ این سی کی سابق پرنسپل سلیمہ ہاشمی نے افتتاح کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں زین مدنی حسینی کی یہ رپورٹ۔ نوجوان مصورہ سریا سکندر کے فن پاروں کی نمائش میں آرٹ کے دلدادہ خواتین و حضرات سمیت طلباء نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اور نمائش میں رکھی گئی پینٹنگز کو خوب سراہا۔ حاضرین کا کہنا تھا کہ سریا کے فن پاروں میں جدید اور ماڈرن میڈیم نظر آتا ہے، جس سے ان کی انفرادیت بڑھ جاتی ہے۔ فنکار کا کام بھی یہ ہے کہ مشکل وقتوں میں اپنے لوگوں میں جو امید کی کرن ہونی چاہیے اس کو اجاگر کرتے رہنا چاہیے۔ ماڈرن آرٹ ہے اور اس کی بڑی خوبصورت ریفلیکشن ہے، بلکہ ریفلیکشن میں کہوں گا کلیکشن بھی ہے۔ مصورہ سریا سکندر کا کہنا ہے کہ انہوں نے قدرتی مناظر اور پھولوں کو شوق رنگوں کے ساتھ نئے انداز سے بنایا ہے۔ تھیم نیچر سے انسپائرڈ ہے، تو لینڈسکیپس ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو سٹی اسکیپس ہیں، فلاورز ہیں اور میڈیم سارے آئل آن کینوس ہیں اور ایکریلک آن کینوس ہیں۔ الحمرا آرٹ گیلری کی کیوریٹر تانیہ سہیل کا کہنا تھا کہ الحمرا ہمیشہ نوجوان مصوروں کے ساتھ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ہم زیادہ تر نئے آرٹسٹ ہی پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ جو اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور جو سینئر ہو گئے ہیں وہ اب کم ہی الحمرا میں آ کے دکھاتے ہیں۔
نمائش میں رکھی گئی ہر پینٹنگ میں آئل کلر کے ساتھ شوخ رنگوں کا استعمال کیا گیا، جس سے سوریا سکندر کا ہر فن پارہ دیکھنے والے کی آنکھ کو خیرہ کر رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد علی شیخ کے ہمراہ زین مدنی، حسینی، City 42 نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے